Good morning, dear students of class 12. My name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss one of the important part of financial statements to be prepared by not-for-profit organization, that is NPO. You know, in our previous two videos related to NPO, we have discussed about the basic feature of NPO and the sources of income of capital nature and revenue nature for the NPO, expenses to be incurred by NPO, object of establishment and operation of NPO. And in the second video, we have discussed about financial statements to be prepared by NPO. And particularly, we have discussed about receipts and payment account and income and expenditure account. We have discussed in the second video related to NPO about the characteristics or features of receipt and payment account and income and expenditure account. And we have also discussed about the balance sheet to be prepared for NPO. Now in this video, we will discuss about receipt and payment account, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। एक गैर लाभकारी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज के एक पिछड़े, शोषित और एक विशिष्ट वर्ग, एक विशिष्ट प्रकार की सेवा या सुविधा कंसेशनल रेट पर, कम कीमत पर, बिना लागत के, बिना मूल्य के प्रदान करना है, जिससे कि समान सामाजिक उत्थान, इक्वलिटी, इक्वल एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को पूरा किया जा सके। Primarily, it is the duty of the government of the country concerned to provide all kinds of facilities to all the citizens of the country concerned. But you know, resources of resources of the government are also limited, and it is not possible for the government, for a country like India, where population is increasing at faster rate, to provide them all round facilities. That is why there is a need to establish NGO and NPO. Due to this situation, so many NPO, so many NGOs are working in India, and they have a special object of their establishment, and each one of them is working for a particular area. They are providing a specific facility to specific and targeted beneficiaries. जो लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे समाज में कौन से वर्ग के लिए कौन सा कार्य करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कई सारे NGO और NPO खोले जाते हैं और वो सामाजिक उत्थान, जन कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन NGO और NPO का जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो प्रोवाइड करते हैं इसके मेंबर्स एंड डोनर्स। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यू नो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, सो दे प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रेट। ऑन द अदर हैंड, not for profit organizations are established
with a view to serve the society, with a view to provide basic amenities, facilities to a particular suppressed, backward section of the society at free of cost or at concessional rate, to improve their living standard and to achieve the object of balanced social and sectoral development. Receipt and payment account is one of the important part of financial statement of NPO. It is prepared with the help of cash book of NPO. Receipt and payment account is summary of all cash transactions. जैसे अगर किसी एनपीओ द्वारा एक साल में 12 बार सैलरी या वेजेस दिया गया तो कैश बुक में वो 12 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। पूरी जो टोटल ऑफ सैलरी पेड किया ड्यूरिंग द ईयर उन सब की टोटल है वो एक बार लिखी जाएगी पेमेंट साइड में, बाय सैलरी पेड, बाय वेजेस पेड। तो इसलिए वो समरी हो गया। कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन डेट वाइज लिखे जाते हैं। अगर एक साल में एक ट्रांजेक्शन 50 बार हुआ तो वो 50 बार लिखा जाएगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उस एक पर्टिकुलर नाम का ट्रांजेक्शन एक हेडिंग में एक ही बार लिखा जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश, इसे सारांश कहते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश बुक। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से शुरू होता है और डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट आती है, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट आते हैं। यू कैन सी द फॉर्मेट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 मैंने लिखा है। तो ये फॉर द ईयर एंडेड यानी कि इसमें पूरे साल भर में जितना भी रिसिप्ट हुआ, जितना भी पेमेंट हुआ वो सारा आता है। इसमें ना कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों तरह की रिसिप्ट भी आती है और दोनों तरह के पेमेंट भी आते हैं। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड नो एडजस्टमेंट इज कंसिडर्ड। इट इज ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक ए समरी ऑफ कैश बुक एंड कैश बुक इज prepared on the rule of real account. So receipt and payment account is also prepared on the rule of real account. And what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. इसीलिए आप देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट आएगी। जो रुपए आते हैं तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट का एग्जांपल है। जब कैश हमें मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब आप कैश का पेमेंट करेंगे तो रुपया जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए पेमेंट सारे क्रेडिट साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इधर लागू होगी और फिर इसमें हम सारे आइटम्स को दिखाएंगे। ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग हेडिंग आएगा, रियल अकाउंट के रूल में बनेगा, एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, कैश बुक से बनाया जाता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों तरह के ट्रांजेक्शन इसके अंदर दिखाए जाते हैं और एडजस्टमेंट इसमें नहीं किए जाते हैं क्योंकि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनता है। ओनली एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड एक्चुअल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर विल बी रिकॉर्डेड। नो नेट नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो एडजस्टमेंट आर कंसीडर्ड। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट आएगी और रिसिप्ट या इनकम जो होती है ना वो दो तरह की होती है, इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड इनकम ऑफ कैपिटल नेचर, राइट। तो ये कैश बुक की समरी है। तो सबसे पहले रिसीट साइड में, डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इसमें कैश और बैंक का बैलेंस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर टू बैलेंस बीडी, राइट। इसमें कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, ये दोनों पहले आप अंदर लिख दो और फिर इसको बाहर ट्रांसफर करो। फिर उसके बाद में देखिए जब भी एनपीओ एस्टेब्लिश किया जाता है, एनपीओ इज एस्टेब्लिश
people of the affluent section of the society, rich section of the society. क्योंकि जो लोग एनपीओ एस्टेब्लिश करते हैं वे वही लोग होते हैं जिनमें समाज सेवा का भाव होता है, और समाज सेवा जो करनी होती है तो सबसे पहले पैसा चाहिए। तो जो लोग जिनके पास अतिरिक्त धन है ड्यू टू गॉड ग्रेस, जिन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है और जिनके मन में सेवा की भावना होती है, वही लोग डोनेशन देते हैं, वही लोग चैरिटी करते हैं, वही लोग एनपीओ एस्टेब्लिश करके समाज के किसी एक पिछड़े वर्ग की सेवा करने का प्रण लेते हैं। अब समाज में पिछड़े या वर्ग कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे कोई हैंडीकैप है, कोई विडो है, कोई अनाथ बच्चे हैं, जिनके लिए थोड़ा दया भाव, सेवा भाव अगर हम रखें तो उनका भी जीवन यापन आसानी से हो सकता है। तो इन लोगों की सेवा और सुविधा के लिए, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा नैतिक विकास, धार्मिक कल्याण, स्वास्थ्य आदि, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे एरियाज हैं जिनमें कि एनजीओ एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द एनपीओ इज the donation given by the members and non-member and the subscription given by the member, और मेंबर बनने से पहले सबसे पहले वो देते हैं एंट्रेंस फीस। तो इसलिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, और इसे अपन एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं, टू एडमिशन फीस, प्रवेश शुल्क। तो दोनों में से कोई एक वर्ड दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टू एंट्रेंस फीस और एडमिशन। ये मेंबर बन गए। अब जो मेंबर बने हैं ना, वो देंगे सब्सक्रिप्शन, चंदा देंगे हर साल, क्योंकि जो लोग समाज के जो है ना उच्च वर्ग के लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं, जिनके पास में ज्यादा पैसा है, जिनमें सेवा भाव है, वो एक एनजीओ एस्टेब्लिश करते हैं और उनमें हर साल, हर महीने एक निश्चित राशि चंदे के रूप में देते हैं, दान के रूप में देते हैं। वो पैसा समाज के एक टारगेटेड बेनिफिशियरी, जिन लोगों की सेवा के लिए जो एनपीओ एस्टेब्लिश किया, उन्हीं का सेवा के लिए, ये उत्थान के लिए एनपीओ काम करता है। सब्सक्रिप्शन, CRIPTI, टू सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ, अब इसमें भी ना 3 साल का सब्सक्रिप्शन, हमें कोई लोग पिछले साल का बकाया चंदा था वो इस साल देते हैं, कुछ चालू वर्ष का देते हैं, कुछ लोग 2-3 साल का एडवांस भी देते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज चार्ज एट ए सर्टेन रेट from every member every year. It may be payable on monthly basis or on annual basis or half yearly basis. ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है उसमें हम 3 साल के लिखेंगे हमारा अलग, जैसे लास्ट ईयर का लेते तो हमें पहले पिछले साल का जो बकाया था किसी मेंबर का वो अब दे रहा है, फिर जो चालू वर्ष का जो चंदा है जो मेंबर्स ने दिया तो वो करंट ईयर, और जो नेक्स्ट ईयर में दे देते हैं, कुछ लोग एडवांस में दे देते हैं, तो वो इधर आ जाएगा, और ये तीनों को ऐड करके अब बाहर लिखेंगे। फिर उसके बाद में टू डोनेशन, अगर कोई मेंबर अपने या नॉन मेंबर डोनेशन देता है और उसके लिए उसने कोई पर्पज नहीं बताया कि इसका उपयोग कहाँ करना है, तो वो डोनेशन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई बड़ा एनजीओ है जिसके खुद के अपने हॉल है, ऑडिटोरियम है, लॉन है, तो फिर वो उसका जो है रेंट, तो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद में टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी एनजीओ के पास में ज्यादा पैसा है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर में या बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। तो ये इधर हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम का सोर्स हो गया। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो टू डिविडेंड ऑन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो आप इधर लिखेंगे। और उसके बाद अलावा अब और क्या इनकम हो सकती है, अब कुछ रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड,
एंट्रेंस फीस। अब कुछ कैपिटल नेचर के इनकम अगर हम लिखें तो सबसे पहला लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। अगर किसी एनजीओ का मेंबर बार-बार एवरी ईयर फीस नहीं देना चाहता, सब्सक्रिप्शन नहीं देना चाहता, तो एक साथ दे देता है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल नेचर हो जाएगा, राइट। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद में टू लीगेसी रिसीव। कोई मेंबर अपनी विल कर देता है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये बिल्डिंग, मेरे इन्वेस्टमेंट इस एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो लीगेसी। तो लीगेसी इज ए स्पेशल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय एनजीओ फ्रॉम ए मेंबर और नॉन मेंबर अकॉर्डिंग टू हिज विल आफ्टर हिज डेथ, तो वो लीगेसी हो जाता है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस लीगेसी। टू डोनेशन फॉर, अगर कोई व्यक्ति मेंबर या नॉन मेंबर डोनेशन देता है और डोनेशन फॉर अगर लिख दिया बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल या बुक्स, तो बिल्डिंग डोनेशन फॉर आते वो स्पेशल डोनेशन हो जाएगा और वो हमारा एक सोर्स ऑफ कैपिटल नेचर हो जाएगा। फिर हम और आ सकता है टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, कोई पुरानी मशीन बेची है तो टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो सेलिंग प्राइस है वो हम इधर लिखेंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो ये हमारे कुछ जो सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए, जिसमें इसके अलावा जैसे कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मैगजीन्स लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो। उसके अलावा पेमेंट भी क्या आएगा, किसी भी एनजीओ में कई सारे लोग काम करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस, जो वर्कर्स काम करते हैं वेजेस टू वर्कर्स। फिर बाय सैलरी टू एम्प्लॉइज, फिर बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प, लेटर वगैरह भेजने के लिए पोस्टेज एंड स्टैम्प, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर कोई अच्छे लेक्चर कराया जाता है तो जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं जो लेक्चर देने के लिए आते हैं, दे चार्ज फीस, तो बाय लेक्चर फीस, बाय ऑडिट फीस। एनजीओ को भी अपने बुक्स एंड अकाउंट्स का ना ऑडिट करना पड़ता है, AUDIT, अपने बुक्स एंड अकाउंट्स को चेक करके सीए से चेक करवाकर उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो वो ऑडिट फीस कहलाता है। फीस पेड टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर चेकिंग द बुक्स एंड अकाउंट्स एंड फॉर वेरिफिकेशन of the financial statement that the financial statement of this NPO disclose the true and fair picture of the financial affairs. There is no any fraud or misappropriation. By audit fees. Then by water and electricity charges. By bus, taxi and railway fare, जो नॉन मेंबर्स है कोई और गेस्ट आते हैं, रेलवे फेयर FARE, तो ये फेयर वगैरह पे करना होता है। फिर जो एनजीओ के पास में बहुत सारी एसेट्स होती है उनका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना जरूरी है। फिर जो अगर हमारे पास गार्डन है, पवेलियन है, तो अपकीप ऑफ लॉन LAF के पास जो होती है अपकीप, मतलब मेंटेनेंस, अपकीप
UP upkeep of lawn, LAWN. तो upkeep of lawn, repair and maintenance, bus taxi fare, water and electricity, audit fees, lecture fees. इधर आप रिसीट में लिख सकते हैं टू सेल ऑफ टिकट फॉर एक्टिविटी, सेल ऑफ TICK, सेल ऑफ टिकट ऑफ एक्टिविटी, और इधर लिख देंगे बाय एक्सपेंसिव ऑन एक्टिविटी। ये कुछ एक्सपेंसिव हमने लिखे, और भी रूटीन नेचर के एक्सपेंसिव जो हो सकते हैं। और अब इसके अलावा जो हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे अपन ऑफिस में आप एक बैंक चार्जेस लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड पासबुक का भी कुछ चार्ज लिए जाते हैं, करंट अकाउंट है तो उसका भी बैंक मेंटेनेंस चार्ज लेता है। तो ये हमारे एक्सपेंसिव हो गए, ये सारे लगभग रेवेन्यू नेचर के। अब मैं कुछ ऐसे एक्सपेंसिव लिख रहा हूँ कैपिटल नेचर के, जैसे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे इनकम एंड एक्सपेंसिव मतलब रिसीट एंड पेमेंट आता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो और चाहे रेवेन्यू नेचर का हो। तो अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का पेमेंट किया है, जैसे कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, तो उनका भी सारा पेमेंट इधर आएगा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट तो किया नहीं जाता। तो जो अगर कोई पुरानी संपत्ति बेची है तो रुपया इधर आएगा, और अगर आपने नई संपत्ति खरीदी है तो सब उसका हिसाब इधर आएगा। तो इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन मैंने लिखा, तो एक्सपेंसिव पहले आप और लिख सकते हैं बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, पुरानी वाली होती है वो बेच देते हैं, और जो नई खरीदी जाती है तो उसका आप यहाँ लिख देते हैं बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये हमारा एक्सपेंसिव का पार्ट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, NAGAZIN, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बैंक चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एक्सपेंसिव है, और ये हमारी रिसीट हुई और पेमेंट हुई। अब इसके अलावा देखो बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग खरीदा है या बिल्डिंग में कोई एक्सपेंसिव किया है तो बाय बिल्डिंग, बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो जो भी एनजीओ होते हैं, एनपीओ होते हैं, उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट, मशीनरी की जरूरत होती है लोगों को सेवा देने के लिए। तो वो फिक्स एसेट्स का पार्ट है, उन्हें खरीदा जाता है, पुरानी हो तो बेच दी जाती है, बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। और जो सेलिंग प्राइस होती है इधर लेते हैं, तो बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट, EQUIP, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग, और बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर को बिजनेस को भी चाहिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फिटिंग्स में ऐसे एसेट्स आएगी जो दीवार में फिट होती है, जैसे एसी है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है। तो ये बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग। कभी कभी किसी एनजीओ के पास में ज्यादा पैसे होते हैं तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया जा सकता है, बाय फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। कोई एफडी नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर्स। लेक्चर फीस और लीगेसी जो रिसीव हुआ, और सेल ऑफ मशीनरी, न्यूज़पेपर, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला। तो ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं और कुछ इनकम है। एनजीओ को सारे डिसीजन अपने मीटिंग्स में लेने होते हैं, तो कुछ मीटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो बाय मीटिंग एक्सपेंसेस सारे मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, कॉमनर्स मिलके अगर एक जगह मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, चाहे उनका रेफरेंस
चाहे मीटिंग होल्ड करने के लिए जो एक पर्टिकुलर वेन्यू सेट करने की बात हो, उन सब का हमें पेमेंट करना पड़ सकता है। जो एनजीओ एस्टैब्लिश किए जाते हैं उसमें सरकार भी आपको सहायता देती है, तो वो आपका इनकम हो जाएगी टू गवर्नमेंट ग्रांट। सरकार आपको अनुदान देती है, सहायता देती है, गवर्नमेंट ग्रांट GRANT। ये ग्रांट रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नेचर की हो सकती है, फिक्स एसेट्स के लिए हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हो सकती है, टू सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। कभी कभी आपने कोई आइटम्स एसेट्स खरीदी है एनजीओ एस्टैब्लिश करने के लिए, आपने पूरा पेमेंट कर दिया, बाद में कुछ राशि सरकार आपको रिटर्न करती है, तो वो सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट कहलाएगा, वो आपका इनकम हो जाएगी। और रिसीव्ड साइड में आ जाएगा। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं, डोनर्स आपको एंडोमेंट का पैसा दे सकते हैं, एंडोमेंट रिसीप्ट। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आपको जो 5 लाख रुपए दे रहा हूं, इस 5 लाख रुपए का ब्याज से आप एवरी ईयर जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं उनका एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस किया जाए, तो वो जो पैसा दिया वो तो फिक्स रहेगा, उसका इंटरेस्ट से ना वो एनजीओ के द्वारा एक पर्टिकुलर क्लास के ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क किया जाएगा। तो ऐसी रिसिप्ट है ना वो हमारी एंडोमेंट रिसिप्ट कहलाती है, जिसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो ये आप सारे आइटम नोट कर लीजिए, और इन सब का मैंने आपको मीनिंग बताया कि इसमें रिसिप्ट में भी 2 तरह की रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की, और पेमेंट में भी 2 तरह के पेमेंट है, रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के। कभी कभी कोई रेंट पेमेंट करना पड़ा एनजीओ, कोई बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का, मीटिंग के लिए या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो जो रेंट पेड है ना वो हमारा एक रूटीन एक्सपेंसेस हो जाएगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस हो जाएगा। इन सबको रिसीट एंड पेमेंट को लिखने के बाद में जैसे अपन कैश अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं ना, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी हम बैलेंस निकालेंगे। यू हैव टू टोटल अप बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें जनरली हमारा रिसीट साइड की टोटल ज़्यादा होगी और पेमेंट साइड की टोटल कम होगी, और इनका जो डिफरेंस होगा उसे हम लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस को जैसे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। इसमें भी कैश और बैंक बैलेंस अलग अलग लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, ये दोनों की टोटल को बाहर लिखेंगे और फिर ये इस तरह से हम इसकी टोटल। तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है फॉर एनजीओ, फॉर एनपीओ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक ट्रायल बैलेंस ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपन ट्रायल बैलेंस बनाते, जर्नल बनाते, लेजर बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते, और ट्रायल बैलेंस से फिर अपन ट्रेडिंग पीएनएल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, वैसे ही एनपीओ में जो बुक्स मेंटेन की जाती है उसमें मैंने आपको बताया था कैश बुक एक मेजर बुक होती है,
कैश बुक से ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसके अंदर जो एक्सपेंसेस और इनकम है ना, दो भाग में। रिसीट से दो तरह की है, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। तो जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय इनकम में दिखाएंगे, और जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है वो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगी। उसी तरह से पेमेंट साइड में भी हमने दो तरह के पेमेंट लिखे, रेवेन्यू नेचर के या रिकरिंग नेचर के पेमेंट और कैपिटल नेचर के पेमेंट। तो जो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे, और जो कैपिटल नेचर के पेमेंट है वो हमारी एसेट्स, और वो एसेट्स होगी वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई जाएगी। ठीक है, कैश इन हैंड और एट बैंक हमारा करंट एसेट्स है, ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है किसी एनपीओ का, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। किसी भी एनपीओ का बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप पुट कर दीजिए। तो टोटल ऑफ एसेट्स में से जो टोटल ऑफ लायबिलिटीज है वो घटाओगे तो जो डिफरेंस होगा ना, दैट विल बी कैपिटल फंड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल फंड कहलाएगा। क्योंकि 1 अप्रैल को किसी एनपीओ के पास में एनजीओ के जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनको हमने कैपिटल में बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया है, और डिफरेंस की राशि वो कैपिटल फंड होगी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद में फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन से आइटम दिखाए जाते हैं, तो आई हैव ट्राइड टू कवर most of the important items which are generally considered while preparing receipt and payment account. So you can see all the items to be debited or credited in receipts and payment account. तो receipt and payment account प्राप्ति और भुगतान खाता है। यह हमारा रोकड़ का एक सारांश है, रोकड़ बही का सारांश है जो रोकड़ बही से बनाया जाता है, और इसके ये रूल और रियल अकाउंट में बनता है, इसलिए ना डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट आती है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, अक्रूड अर्नड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का, डेप्रिसिएशन का, लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। और इसके अलावा जो है इसमें पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकृति की प्राप्तियां भी दिखाई जाती हैं, और भुगतान भी पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकृति के दिखाई जाते हैं। इससे सिर्फ यह पता लगता है कि एक एनपीओ के पास में पूरे साल भर में कहां से रुपए प्राप्त हुए, और वो जो रुपए प्राप्त हुए उन्होंने कहां खर्च किए, और उनके पास एंड ऑफ द ईयर बचे में कितने रुपए हैं, बैंक में कितना है और कैश इन हैंड कितना। ये सारा हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की एक समरी होती है। और एनपीओ को भी अपना हिसाब किताब रखना तो होता ही है, क्योंकि एनपीओ में जो लोग डोनर है, मेंबर है, जो सब्सिशन देते हैं, डोनेशन देते हैं, उनको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, लेकिन एवरी डोनर, एवरी मेंबर वांट टू नो वेदर द डोनेशन और द चैरिटी और द सब्सिशन और द अमाउंट गिवन बाय देम हैज बीन प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टारगेटेड बेनिफिशियरीज और नॉट। ये सब लोग डोनर चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा दान में दिया है, लोगों के कल्याण के लिए दिया है, वो पैसा वास्तव में उन लोगों तक पहुंचा है कि नहीं, ये उनकी अपेक्षा होती है। इसीलिए एक एनपीओ को भी अपने बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है, उसे अपना ऑडिट भी करानी होती है, और गवर्नमेंट भी उन पर चेक करती है, तो सीए से ऑडिट भी करानी होती है, और इनका इनकम टैक्स का रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स भी भरना होता है। टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी करना होता है कि उनकी क्या पोजीशन है, उन्होंने क्या पूरे साल भर में काम किया, so that government can also prepare plan and policy for the poor and the suppressed section of the society। कौन से थ्रस्ट एरिया है जहाँ सरकार को और ज़्यादा काम करने की जरूरत है, या एनजीओ को और मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर एनजीओ सही काम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर गेटिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको बंद भी किया जा सकता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनको चेक किया जा सकता है, उनको वार्न किया जा सकता है। तो इसलिए अकाउंटिंग भी जरूरी है और ऑडिटिंग भी जरूरी है, ऐसे एनजीओ की स्थापना भी जरूरी है, उनका प्रबंध संचालन जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है। और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है
उनकी भी इच्छा होती है कि उनका पैसा कुछ अच्छे कार्यों में लगे, समाज कल्याण के कार्य में लगे। तो कई लोग ऐसे पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो दे वांट टू नो व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता है, सही जगह पे सही व्यक्ति को सहायता करने का उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो दे सर्च फॉर such kind of NGO who are really working for the betterment of a particular class of the society. They give donation to such organization and these organizations work for the betterment of some targeted beneficiaries of the society. So I am sure that you are able to understand what is receipt and payment account, how it is prepared, and what is the source information for preparing the receipt and payment account, and what are the contents of this account. So please watch this video for your advantage, share this video for the benefit of your friends and colleagues, subscribe this video so that you will get all my next video, and please don't forget to like this video so that I will continue to work for you. God bless you. Thank you very much.